Hello, 7th standard, and welcome to English class. Today we are going to continue with Unit 3 from your English Semester 2 textbook. We had already finished Activity 1. We had finished with the poem Dreams, Activity 2, Activity 3, and Activity 4 also we had finished. Let us move towards Activity 5. Right, we'll continue with activity 5. Can you see this picture? This, yes, this is the picture. This is the picture of a scuba diver. है ना? Scuba diver की ये picture है. Because this unit talks about sports. हमने पहले वाली activities में we spoke about karate, taekwondo, है ना? ये सारी स्पोर्ट्स के बारे में हमने जो है पढ़ा और बातें भी की. Let us move towards another sport, scuba diving. Anna, let us see what is scuba diving. Here is an experience narrated by a scuba diver who is called a scuba diver. जो स्कूबा डाइविंग करते हैं उनको हम स्कूबा डाइवर बोलते हैं. लेट अस सी कि वो क्या एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपना. Scuba diving is a water sport. What kind of sport is scuba diving? Scuba diving is a water sport. It is a form of underwater diving in which a diver uses a self-contained underwater breathing apparatus to breathe underwater. I don't know whether you people have seen, right? लेकिन जब कभी भी स्कूबा डाइवर्स जो है वो डाइविंग करने जब जाते हैं तो एक सिलेंड्रिकल शेप में वो लोग पीछे जो है पूरा कंटेनर लेकर जाते हैं, एक एपरेटस जो है वो लेकर जाते हैं, right, to breathe underwater. Unlike other modes of diving which rely either on breath hold or on air pump from the surface, scuba divers carry their own source of breathing gas, allowing them greater freedom of movement than with an airline or divers' umbilical or longer underwater endurance than breath hold. अब वो अपने साथ एक और क्या लेके जाते हैं, ब्रीदिंग गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, which allows them of a greater freedom of movement, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक वो मूव कर सकते हैं, क्योंकि they can breathe properly, है ना? तो वो अच्छी तरीके से जो है they can enjoy. Scuba equipment may be open circuit in which exhaled gas is exhausted to the surroundings, or closed or semi-closed circuit in which the breathing gas is scrubbed to remove carbon dioxide and the oxygen used is replenished from the supply of feed gas before being rebreathed. अब जो है ये किस तरह यूज करते हैं, उनकी जो एक्सेल जो उन्होंने द एक्सेल द गैस व्हिच इज एक्सेल्ड, राइट, जब वो एग्जॉस्ट हो जाती है सराउंडिंग्स में, राइट, इसके कारण क्या होता है, ब्रीदिंग गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इट इज कम टू रिमूव, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेनिश होता है फ्रॉम द सप्लाई एंड थ्रू दैट दे ब्रीथ, राइट. So this is scuba diving. This is a picture of that. This is another one sport. Let us read about scuba diving experience. Some people are scared to try scuba dive. Some people love this sport and always find their excuses to go somewhere only to dive. It all depends upon the people who love water, right? Is this sport has more similarity with my favorite food during. Either you love it or you hate it, or just don't have the courage to try. It is always with every sport, right? कोई sport होता है which you really love and कोई sport होता है which you hate. काफी सारी चीजों में भी होता है I love this and I hate this, है ना? But sometimes we don't even have the courage to try, right?
जैसे बंजी जंपिंग है या स्कूबा डाइविंग है, ऐसे सारे स्पोर्ट्स में यू रियली नीड गट्स एंड करेज टू ट्राई दिस स्पोर्ट्स आउट, है ना? तो बहुत सारे लोगों के पास दे डोंट हैव द करेज टू ट्राई. I'd been thinking to take a course on scuba dive months ago, but wasn't sure as I'm scared of snakes, sea snakes. Thinking about it makes me sick and all frightened. अब यहाँ पर स्कूबा डाइव जो है, यहाँ पर जो नरेटर जो है, ही सेइंग दैट वो सोच रहे हैं कि वो एक कोर्स ले लेंगे. कोई भी ये स्कूबा डाइविंग सीखने के लिए भी कोर्स होता है ना? तो थिंकिंग कि मैं एक कोर्स कर लूं, लेकिन स्कूबा डाइविंग अभी हमने क्या पढ़ा कि the person has to dive underneath the water. अब underneath the water the world is very different, है ना? आपको फिशेस मिलेंगी, सी स्नेक्स मिलेंगे, कोरल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं अंडर द वाटर, राइट? एंड वी रियली गेट स्कैर्ड बिकॉज दैट अंडर वाटर का वर्ल्ड जो है ना, वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है. वी आर नॉट यूज टू दैट वर्ल्ड, राइट? वो जो अंडर वाटर का जो सिनेरियो है, जो सीन है, राइट, जो स्पीशीज है, राइट, वो अलग है एकदम, राइट? एंड वी डोंट नो, तो लोगों को डर भी लगता है. आई एम स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स एंड सी स्नेक्स. थिंकिंग अबाउट इट मेक्स मी सिक एंड ऑल फ्राइटेड. तो नरेटर बोल रहा है कि वो सोचकर ही मुझे बड़ा घबराहट हो रहा है. But then I was so curious why people love it so much. Well, even narrator is wondering कि लोग कितने curious होते हैं ना ये try करने के लिए. So he wants to know कि why people are so curious, because it is really scary down. But still people are curious, right? They all say that under the sea is like totally different world, yet a beautiful one. जो अभी मैंने आपको बताया, मतलब जो लोग ये सारे स्पोर्ट्स ट्राई करते हैं या ये सारे स्पोर्ट्स में वो लोग जो है इन्वॉल्व हैं, राइट, जो डाइवर्स जो है, राइट, तो ये लोग बोलते हैं द वर्ल्ड अंडरनीथ, जो अभी व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ, द वर्ल्ड underneath, under the sea, is a very different world, but it is very beautiful, right? मतलब जो species है वहाँ पर, species of flowers and snakes हैं, corals हैं, oysters हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पर, and it is really beautiful. And for that, I am taking my risk and try to overcome my fear of possibility of bumping into sea snake. यहाँ पे narrator बोल रहे because I want to see that world, that beautiful world I want to see. And he's saying that is why I want to take that risk, right? And I don't mind bumping into any sea snake. And he laughs out. So after taking a private lesson from my diving instructor, I went to an island. Here is my first experience. जो नरेटर है, उन्होंने अपनी क्लासेस ले ली, अपना कोचिंग ले लिया, मतलब डाइविंग का, स्कूबा डाइविंग का, डाइविंग इंस्ट्रक्टर से. अब वो एक आइलैंड पे गए हैं एंड उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही इज एक्सपीरियंसिंग, ही हैज रिटन, मतलब उनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ही हैज रिटन दैट. लेट्स सी कि क्या है. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली वंडरफुल. First dive, 12 meters depth, tried hard not to panic. What the hell I am doing? I said to myself, what if something bad happened? But I kept a positive thought. It's going to be a wonderful experience. Just do it. Then I synced myself and went down deeper and deeper. यहाँ पर narrator he say उनकी first dive, he was just about to dive, है ना, छलांग लगाने वाले थे, डाइव लेने वाले थे, और उनकी फर्स्ट डाइव कितना, 12 मीटर्स डेप्थ. कितना था डेप्थ? 12 मीटर्स डेप्थ की वो फर्स्ट डाइव लेने वाले थे. एंड ही वाज पैनिक्ड, मतलब उन्हें डर लगने लग रहा था. एंड वो अपने आप को बोल रहे थे व्हाट द हेल, मैं क्या करने जा रहा हूँ, व्हाट द हेल, व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, अगर कुछ गलत हो गया तो, समथिंग बैड हैपन. लेकिन फिर वो अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट देते हैं and he himself encourages himself and he gives a positive thought to himself and he says it is going to be a wonderful experience, just do it. And then उन्होंने क्या किया, then I synced myself, उन्होंने dive किया
एंड देन ही वेंट डीपर एंड डीपर, वो और डीपर जाने लग गए. I could feel my heart beats fast and my ears hurt as I went deeper. और जैसे वो डीपर जा रहे थे तो उनका हार्ट जो है वो ज्यादा बीट करने लग गया, है ना, और उनके कानों में दर्द होने लग गया एज ही वाज गोइंग डीपर. है ना, आप लोगों ने जो भी लोग स्विमिंग करते हैं तो शायद उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो कि हम थोड़ा सा भी अगर ज्यादा अंदर डीप पानी में जाते हैं हमारे कानों में, कुछ लोगों को, मे बी नॉट टू एवरीवन, बट कुछ लोगों को कानों में दर्द होता है. राइट, दिस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस ऑफ अ स्विमिंग पूल, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आइलैंड, है ना. So here he's saying that my ears hurt as I went deeper. So what happened? His ears were hurting as he went deeper. Following my diving instructor, I equalized my ears often until I felt comfortable to explore the underwater sea. और let's see कि वो धीरे धीरे जो है अपने आप मतलब कंफर्टेबल फील कर रहे थे when he was exploring the underwater sea. Suddenly all around me was green. अब वो नीचे का वर्ल्ड बता रहे हैं, सी के अंदर का वर्ल्ड ना. एंड नरेटर क्या देखते हैं, एवरीथिंग वाज ग्रीन अराउंड हिम. आई फेल्ट लाइक लिविंग इन अ ग्रीन वर्ल्ड. Really, as far as I could see, everything was green. I saw, and what did he see? I saw some corals, big ones. Some of them look like giant mushrooms, right? I want you today. I'm going to give you. I mean, I'll give you a homework. आज आपको कोई underneath the water, the world underneath, ये कोई भी एक YouTube में देखो या कोई मूवी अगर आपने देखनी है वो देखो इसके रिलेटेड. एंड जस्ट या तो वो नेशनल जोग्राफिकल चैनल आता है उसमें भी बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा. बस प्लीज सी दैट, है ना, कि अंडरनीथ द वाटर क्या क्या है, वर्ल्ड क्या है अंडरनीथ द वाटर, राइट. So everything was green and he's saying that I saw some corals, big ones, some of them look like a giant mushroom. I saw some sea urchins too, a lots of fishes hiding in the sand. I was enjoying the scenery all around me until my instructor waved at me and her hand holding a pink fin. What? That fin looks familiar. This narrator was lost in the world. जो पानी के जो अंदर वो इतनी सारी सीनरीज जो है वो देख रहे थे तो she was lost, right? और सडनली उसको ऐसा लगा कि जो इंस्ट्रक्टर है वो इंस्ट्रक्टर जो है उन्होंने कुछ एक पिंक कलर की फिन दिखाई. क्या दिखाया? सम फिन, फिन होती है ना, तो पिंक कलर का फिन दिखाया. और जब नरेटर ने देखा ये फिन तो जो है मुझे देखी हुई लग रही है, थोड़ी फेमिलियर लग रही है. एंड आई थॉट एंड यस दैट्स माय फिन. Ha ha ha, I didn't realize that my right fin managed to release itself from my right foot. डाइवर्स देखे ना, जैसे फिशेस के जो पीछे वाला जो होता है ना उस तरह का वो लोग पहन कर जाते हैं, है ना, शूज वगैरह उनके जिस तरह होते हैं. तो एकदम जब उन्होंने फिर देखा फिर उन्होंने अरे ये फिर तो मेरी देखी हुई लग रही है, उनको रियलाइज हुआ अरे ये तो मेरी ही फिन है जो शायद मेरे राइट फुट से निकल गई है, रिलीज हो गई है. आई वॉज ऑलमोस्ट चोक फ्रॉम लाफिंग with the regulator on and the mask attached on my face. और नरेटर को खुद के ऊपर हंसी आ रही थी, मतलब इतनी जोर जोर से हंस रहा था कि मतलब वो जो चोक हो रहा था वो ही वॉज गेटिंग चोक विद द लाफ, क्योंकि मास्क पहना होता, पूरा फेस जो है पूरा कवर्ड था. वो पाइप्स भी होते हैं, मास्क भी होता है, रेगुलेटर ऑन था, है ना, और उसके अंदर जो है वो अपने आप की गलती पर हंस रहा था. सो दैट वाज द फर्स्ट डाइव. मतलब वो अपना एक्सपीरियंस जो बता रहे थे वो उनका पहला डाइव था. पहले तो वो डर रहे थे बट ही वांटेड टू सी द वर्ल्ड अंडरनीथ द वाटर. फिर उनकी फिन निकल गई, उनको पता नहीं चला. इन टोटल वी डोव 5 times in 2 days, है ना. मैनेज टू डाइव अप टू 18 meters डेप्थ. अब 2 days में वो 5 times उन्होंने डाइव दी
और मैक्सिमम डेप्थ उन्होंने कितना डाइव किया, 18 meters. The next dives were smooth and for sure I didn't lose my fin. अब ऑब्वियसली वो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो गए. नेक्स्ट डाइव में क्या हुआ कि फिन भी उतरी नहीं, फिन भी रिलीज नहीं हुई क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते गए. Was so happy to see different types of fish swimming in front of me as if I was invisible. मतलब उनको ऐसा फील हो रहा था कि मैं पानी के अंदर, बिल्कुल पानी में नीचे अंडरनीथ द वाटर में तैर रहा हूँ और जो फिशेस हैं मेरे सामने तैर कर रही है, मेरे सामने स्विमिंग कर रही है. एज इफ वो फिशेस को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं इनविजिबल हूँ उनके सामने. क्योंकि जब वो डाइवर्स अंदर जाते हैं, राइट, वो भी अपने जैसे नहीं, मैंने बताया कि उनके शूज पैरों के वहां पर जो उनको जो भी उनका जो सूट पहना हुआ होता है या वॉट एवर, वो उनको तो फिश की तरह ही लग रहे होते हैं, है ना. तो मतलब ऐसे लग रहा था फिशेस को जैसे मैं दिखाई ही नहीं दे रहा हूँ, आई वाज इनविजिबल. The sea definitely looks beautiful underwater, and it really amazed me to realize that there are thousands of creatures living under the sea peacefully. और नरेटर ने रियलाइज किया कि सी के नीचे बहुत सारे क्रीचर्स हैं, राइट, और वो इतने पीसफुली रहते हैं. द वर्ल्ड अंडर वाटर वाज ब्यूटीफुल. इट वाज इंडीड सो पीसफुल डाउन देयर, सो क्वाइट. All I could hear was only my breathing. Only he could hear, I could hear was only my breath, breathing in and breathing out. अब imagine कितना silence होगा नीचे, कितना peace होगा नीचे, है ना, underneath the water, कि उनको सिर्फ अपनी सांसों की आवाज आ रही थी, अपनी breathing, अपनी breath की आवाज आ रही थी, breathing in and breathing out, while enjoying the green world and its inhabitants around me. And he was enjoying the green world and the inhabitants, right? So this is activity 5, right? You understood the experience, right? You loved the experience of the narrator. Now what do you have to do? This is your homework. Prepare a brief summary of scuba diver's story of his experience. आपको ये पूरा एक्सपीरियंस जो है, जो अभी हमने पढ़ा, इसकी समरी आपको शॉर्ट में उनका एक्सपीरियंस लिखना है, ठीक है. Our next question is, you and your friends would like to interview this scuba diver, है ना, ये जो scuba diver है, you want to take his interview, right? You want to get some more details of scuba diving? Okay. So if you want to interview this, suppose आपके सामने आज रात को अगर आप सोओगे ना, right, तो आपको सपने में you are going to dream about the scuba diver. ठीक है, ये स्कूबा डाइवर जो है इसके बारे में आपको एक सपना आने वाला है, एक ड्रीम आने वाला है. और वो ड्रीम में पता है क्या कर रहे हो आप वो स्कूबा डाइवर का इंटरव्यू ले रहे हो. ये वेरी गुड, ठीक है. यू आर इंटरव्यूइंग दिस स्कूबा डाइवर, है ना. अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो ये स्कूबा डाइवर ने अपने एक्सपीरियंस में लिख दी है. इसके अलावा और more information you want, so you have to frame 3 questions, ठीक है. You have been given a chance to interview the scuba diver and you just have to ask him 3 questions, okay. So which 3 questions are you going to ask the scuba diver? You have to write in this box, okay. This is a homework. From your questions and experience, write tips for scuba diver. This is another question, another homework, okay. So ये homework आपको करना है. And activity 6, and this is wonderful sport. और ये हमारी इंडिया में बहुत फेमस स्पोर्ट है. हाँ पहले, बहुत पहले, राइट. एक्टिविटी 6, और इस स्पोर्ट का नाम पता है क्या है? आर्चरी. हमारे जो किंग्स है और जो प्रिंस जो थे उन, यस, हमारी हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, इंडिया की हिस्ट्री में, कि आर्चरी जो है वो स्पोर्ट था. और सब राजा महाराजा प्रिंस जो थे वो सब ये सीखते थे, है ना. तो लेट अस रीड. एंड ये स्टोरी हमने अपनी यंग एज में पढ़ी भी है. आर्चरी इज अ स्पोर्ट
History of archery in India dates back in Vedic era. You are familiar with mythological character Eklavya. याद है character Eklavya? Right? Given here is the beginning of the story. Read it. This is a story of a long gone era. In the country of India, nearly 5,000 years back, there lived a boy named Eklavya, the son of a tribal chief in the forest of kingdom Hastinapur. ठीक है? अब एक kingdom था हस्तिनापुर, right? अब वो हस्तिनापुर में एक बॉय रहता था, उसका नाम था एकलव्य, एंड ही वाज अ सन ऑफ अ ट्राइबल चीफ. ठीक है? Eklavya was very brave. He was a handsome boy and he was loved by all. But he was not happy. This Eklavya जो था, though he was very brave, बहुत बहादुर था, बहुत good looking, handsome भी था, and everybody loved him. But still he was not happy. Why was he not happy? Let us read. His father saw that something troubled Eklavya. More than once he found his son lost deep in thought when other boys enjoyed the pleasure of hunting and playing. अब ज्यादातर उसके पापा ने देखा जब उसकी उम्र के बच्चे, उसके जो फ्रेंड्स जो थे, they were enjoying themselves, they were hunting, they were playing, but एकलव्य जो है वो चुपचाप बैठा रहता, lost in his own thoughts, तो अपने thoughts में चुपचाप बैठा रहता और बहुत sad लगता था. So one day the father अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर पता है क्या है, this is the beginning of the story and then mid of the story is not given. Now this is the end of the story, right? अब end में क्या होता है, let's see. ये story हमने पहले भी सुनी है. Here is my Guru Dakshina Drone, Eklavya said. I am happy that you have made me your disciple, even if I am a mere Shudra hunter. अब एंड में, ये मिड में तो मतलब फादर ने देखा कि ये बड़ा सैड रहता है, फिर बीच में क्या हुआ वो पता नहीं. सच तो हमने बचपन में ये स्टोरी पढ़ी है, हम सबको पता है, लेकिन इधर दिया हुआ नहीं है. फिर एंड में दिया हुआ है, स्टोरी के एंड में क्या है, और फिर द्रोणा, द्रोणा कौन थे, ही वाज अ गुरु, है ना? द्रोणा जो थे वो गुरु थे. तो द्रोणा ने एकलव्य को बोला, हियर इज माय गुरु दक्षिणा. द्रोणा, एकलव्य said, I am happy that you have made me your disciple, even if I am a mere Shudra hunter. और एकलव्य बोलता है कि I am so happy that तुमने मुझे अपना शिष्य बनाया है. Though I am a Shudra hunter, मैं एक छोटा सा उस समय शूद्र मतलब ये टॉकिंग अबाउट द लो कास्ट, है ना, और हंटर का बच्चा हूँ, और फिर भी तुमने मेरा डिसाइपल, एज आई टोल्ड यू कि उस टाइम पर प्रिंस और राजा वो लोग भी आर्चरी सीखते थे. अब ये जो बीच की स्टोरी है ना, इसमें हमें ये देखना है कि एकलव्य ने द्रोणा को अपना गुरु कैसे बनाया, और उसने जो है आर्चरी किससे सीखी, अगर द्रोणा से सीखी तो क्या द्रोणा ने रियली उनको डिसाइपल बनाया था, बनाया था उन्होंने, हमने ये स्टोरी पढ़ी है ना? और अगर बनाया था तो किस तरह सिखाया, और अगर नहीं बनाया था तो एकलव्य ने द्रोणा को अपना गुरु कैसे बनाकर उनकी जो स्टैचू थी, है ना, यस, उनकी जो स्टैचू थी, राइट, और किस तरह उन्होंने जो है सीखा आर्चरी. ओके, ये आपको जो है ये फाइंड आउट करना है, और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ये मिड वाली जो स्टोरी है हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट अस सी कि आगे क्या होता है. द सेज वाज हम्बल्ड, ही ब्लेस्ड द यंगर आर्चर ऑफ हिज करेज. एकलव्य, इवन विदाउट योर थंब यू विल बी नोन एज अ ग्रेट आर्चर. और वो जो मिड वाली स्टोरी है उसमें हमें ये बताना है कि द्रोणा ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा. द्रोणा ने
गुरु दक्षिणा में एकलव्य से क्या मांगा, राइट। और एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे अपने गुरु को वो गुरु दक्षिणा दे दी, राइट। और जो सेज मतलब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट गुरु द्रोणा। He was so humble and he said, young archer, you are blessed. मतलब though you do not, अब एकलव्य के पास तो थंब भी नहीं रहा, है ना, एकलव्य के पास तो थंब भी नहीं रहा। अब आप इमेजिन करो, बिना थंब के क्या हम आर्चरी कर सकते हैं? हम तीर कमान चला सकते हैं बिना थंब के, राइट। लेकिन द्रोणा ने उनको ब्लेस किया कि एकलव्य, इवन विदाउट योर थंब you will be known as a great archer, right? I bless you that you will be remembered forever for your loyalty to your guru. तो आज तक भी हम एकलव्य को किस तरह याद करते हैं? एकलव्य को हम किस तरह याद करते हैं? Which quality of it? Without thinking anything, whatever his guru asked him, जो भी गुरु दक्षिणा मांगी और उन्होंने एकलव्य ने दे दी, है ना। Drona declared and left the forest. He was moved and grieved at his own action. और जो गुरु द्रोणा जो थे, उन्होंने वो फॉरेस्ट तो छोड़ दिया, लेकिन गुरु द्रोणा को खुद के एक्शन पर, मतलब उन्होंने जो किया, उन्होंने क्या किया था? एकलव्य से उसका थंब मांग लिया गुरु दक्षिणा में, है ना। पहली चीज ये मैं आपको बीच बीच में टिप्स और मैं क्या हिंट्स देती जा रही हूँ स्टोरी के, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको मुझे बतानी है वो स्टोरी। तो एकलव्य ने क्या किया था? क्या एक्चुअली द्रोणा ने उनको सिखाया था, हाँ या ना? वो आपको बताना है, ठीक है। एंड विदाउट टीचिंग देन ही आस्क्ड फॉर द गुरु दक्षिणा, और गुरु दक्षिणा भी उन्होंने क्या मांगी? हम मांग लिया। और हम के बगैर क्या कोई आर्चरी कर सकता है, राइट। तो द्रोणा को खुद के अपने एक्शंस पर जो उन्होंने किया, एकलव्य का जो थंब मांग लिया, उसको उनको ग्रीव फील हो रहा था, मतलब he was feeling very bad, he was feeling guilty about what he did, but he was content that his promise to Arjuna was not broken. और आपको पता है द्रोणा ने एकलव्य से, क्योंकि एकलव्य बहुत करेजियस था, बहुत ब्रेव था, लेकिन द्रोणा जो थे उन्होंने अर्जुन को ये प्रॉमिस किया था कि अर्जुन जो है वो सबसे ब्रेव है, सबसे बड़ा आर्चर है ना, राइट। तो उन्होंने ये बोला था, उन्होंने अर्जुन को ब्लेस किया था और अर्जुन को जो है वरदान दिया था, इसीलिए शायद एकलव्य से थंब मांग लिया। तो एक जगह तो उन्हें बड़ा बुरा लग रहा था कि एकलव्य से उन्होंने थंब मांग लिया, और एक तरफ से वो कंटेंट भी थे कि उन्होंने जो अर्जुन को प्रॉमिस किया था वो टूटा नहीं। God bless Eklavya from above. But despite his handicap, Eklavya continued to practice archery. How could he do so? When one is dedicated, one can make even mountains bow. With practice, Eklavya could shoot arrows with his index and middle finger, and he became a greater archer than he was ever before. अब अगर थंब ले लिया तो क्या हो गया? एकलव्य क्या हो गया? हैंडीकैप बन गया। एंड एज वी डिस्कस राइट नाउ, थंब के बगैर तीर कमान चलाना, आर्चरी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एकलव्य ने प्रैक्टिस की, वो आर्चरी इस तरह प्रैक्टिस की, ही वाज सो डेडिकेटेड दैट उनकी जो फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, है ना, इन दोनों फिंगर से उन्होंने तीर कमान, एरो शूट करना प्रैक्टिस किया, एंड ही बिकेम द ग्रेट आर्चर देन एवर, राइट। ऐसा बोला जाता है कि जब हम किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज हम करने के लिए अगर हम ठान लेते हैं, if you really want to work on something, your dedication can make mountains bow down, right? His renown spread far and wide. और एकलव्य फेमस होने लगा आजू बाजू, far and wide, everywhere he became famous. When Drona came to know this, he blessed the boy silently and begged for divine forgiveness.
और जब द्रोणा को पता चला कि मेरे इस थंब मांगने के बाद भी उस बच्चे ने खुद अपने आप में मेरी स्टैचू रखकर इंडेक्स और मिडिल फिंगर से उसने जो है शूट एरोस करना स्टार्ट किया है और वो इतना बड़ा ग्रेट आर्चर बन गया है और लोग उसको जानने लग गए हैं, इज बिकम रिनाउंड, वो फेमस हो गया है। तो जोना ने उस बच्चे को साइलेंटली ब्लेस भी किया और उससे माफी भी मांगी। And true to Drona's blessings, Eklavya is still praised as the most loyal and brave student in the epic of Mahabharata. और ऐसा बोला जाता है कि till today द्रोणा जैसा, द्रोणा की ब्लेसिंग से इट इज सेड कि एकलव्य जैसा कोई भी लॉयल और ब्रेव स्टूडेंट आज तक नहीं हुआ है। एंड ही इज praised in the epic of Mahabharata. Eklavya is praised in the epic of Mahabharata for because naturally he was loyal to his guru Drona and he was brave, right? क्योंकि वो द्रोणा का नाम भी नीचे नहीं करना चाहते थे because he wanted his guru's name, right? तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया कि कोई ये ना बोल दे कि उनके गुरु द्रोणा ने क्या सिखाया। और वो इतने लॉयल थे गुरु से कि उन्होंने गुरु ने जो गुरु दक्षिणा मांगी वो उन्होंने बिना सोचे समझे दे दी और फिर भी वो आर्चरी करते रहे और मिडिल और इंडेक्स फिंगर से भी उन्होंने एरो शूट करना स्टार्ट किया and he became famous. Eklavya is still praised, right? So this is the story about Eklavya and sport archery. अभी भी ओलंपियाड्स वगैरह में भी आर्चरी स्पोर्ट भी है ना? So now what is the homework? Work in the group and write the middle of the story. अब groups में तो हम work नहीं कर सकते because we all of us are sitting at home. Middle of the story you have to write. Try to build dialogues between Eklavya and his father. Eklavya and Drona and Arjun and Drona. तो आपका दूसरा होमवर्क क्या है? ये जो मिड की जो स्टोरी है, वन डे द फादर, हुज फादर, एकलव्य के फादर और एकलव्य के बीच में क्या डायलॉग्स हुए, फिर एकलव्य और द्रोणा उनके जो गुरु थे उनके बीच में क्या डायलॉग्स हुए और अर्जुन और द्रोणा के बीच में क्या डायलॉग्स हुए, राइट? दिस यू हैव टू राइट, दिस इज योर होमवर्क. So for this session we are going to do only till here and next lecture में हम activity 7 सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है?